Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn about another hook which is use effect hook. So what is use effect hook? With the help of use effect hook, we perform side effect to our components. Since React is made out of components and there are many components and if we use side effect in our components, then we use effect hook to perform this side effect to our component. So use effect is used to perform side effect to our component. So here one term is what is side effect? Side effects are action which are performed with the outside world. Like side effects are the action which are performed with the outside world. We perform a side effect when we need to reach outside of our React component to do something. ठीक है, like common side effect में हमारा हो जाएगा fetch data from API. Second है update DOM and Windows object. थर्ड है हमारा time functions which is set timeout and set interval function. So in this scenario we used use effect hook. So what is syntax of use effect hook? Just use effect takes two argument. First is callback function. Okay, first is callback function and second is dependencies. So this callback function perform side effect in our components, and this callback define what to run, and the second parameter and the second argument of use effect is dependencies. And what is dependencies is array of variable. Sometimes it is empty array and sometimes it gives with state variable. Sometimes here we pass multiple state variable or a single state variable. Okay, and sometimes it is optional. So there are three variant for use effect. At if you pass only callback, then this is first variant of use effect. Second variant is if you pass empty array, this is second variant. Third variant, if you pass in place of dependencies like a state variable in array, then this is third variant. So in this code we use all the variant of use effect, and use effect runs on every render of components, which means any state variable change component render, and इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं डिपेंडेंसीज के थ्रू. लाइक यही हमारी डिपेंडेंसीज है, ये एरे ऑफ वेरिएबल्स जिसके थ्रू
हम अपने रेंडरिंग को कंट्रोल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हम कोई भी डिपेंडेंसी नहीं देंगे यूज इफेक्ट में, सिर्फ कॉल बैक देंगे, क्योंकि डिपेंडेंसीज जो हैं वो ऑप्शनल होती हैं, ऑप्शनल होती हैं। आपको अगर प्रोवाइड करना है तो प्रोवाइड करिए, अदरवाइज मत करिए। तो अगर आप सिर्फ कॉल बैक देते हो तो कॉल बैक में क्या होगा कि जब जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होगा तब तब हमारा यूज इफेक्ट रन करेगा, यानी कि तब तब हमारा साइड इफेक्ट हमारे कंपोनेंट में आएगा। जो भी साइड इफेक्ट हो रहा है वो बार बार होता रहेगा जब भी कंपोनेंट री रेंडर करेगा। तो यहाँ पर 3 वेरिएशन है यूज इफेक्ट के, एक एक करके हम इसको देखेंगे। फिर से अगर एक बार यूज इफेक्ट को यूज करके देखते हैं। लाइक use effect hooks lets you perform side effect in function component। जब भी कोई कंपोनेंट फर्स्ट सेकेंड टाइम रेंडर होता है, उससे हमको कोई काम करवाना है तो उसके लिए हम यूज इफेक्ट का यूज कर सकते हैं। लाइक स्टेट वेरिएबल के अंदर कोई चेंज हो रहा है और हम डेटा फेच कर रहे हैं, ठीक है, फिर कोई भी साइड इफेक्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पर उसके लिए हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं। स्टेट वेरिएबल क्रिएट किया, उस वेरिएबल में कोई चेंज आया, तभी तो कंपोनेंट री रेंडर होगा। तो जब कंपोनेंट री रेंडर होगा, उसमें चेंज आ रहा है, तो उस चेंज को हम ट्रैक कर सकते हैं, और उसको ट्रैक करने के बाद कभी भी चेंज आएगा उसके बेसिस में हम कुछ ना कुछ काम करवाएंगे, तो उसे हम साइड इफेक्ट कह सकते हैं। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। सबसे पहले हम यूज इफेक्ट को लिखते हैं। यूज इफेक्ट हमारा जो है ये है, ये एक कॉल बैक लेता है, तो हमने अपना कॉल बैक बना लिया। अभी हमने कोई डिपेंडेंसीज नहीं, ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन है यूज इफेक्ट को यूज करने का, फर्स्ट वेरिएशन, ठीक है। इसमें हमने कोई भी डिपेंडेंसीज पास नहीं किया आर्ग्यूमेंट में। अब हम क्या करेंगे कि सीधे कंसोल डॉट लॉग प्रिंट कर देंगे ऑन एवरी रेंडरिंग यूज इफेक्ट रन। तो जब भी हमारा जो क्या बोलते हैं, ये जो काउंट स्टेट वेरिएबल, इसमें कोई भी चेंजेस आएगा, काउंट वेरिएबल में कोई भी चेंजेस आएगा, काउंट वेरिएबल एक स्टेट वेरिएबल है, इस स्टेट वेरिएबल में जब भी चेंजेस आएगा तब हमारा पूरा का पूरा कंपोनेंट री रेंडर होगा। और जब हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है तो उसके बाद अगर हमको कोई भी काम परफॉर्म करवाना हो, मतलब री रेंडर होगा तब, तो जब भी री रेंडर होगा तो ये हमारा कंसोल पे प्रिंट होकर आएगा। अब हम क्या करेंगे कि अपने सर्वर को ऑन करेंगे और अपना यूआई जो है वो देखते हैं क्या आ रहा है यूआई में। तो यूआई में हमने बनाया था एक एक काउंट बनाया था, और अब जब भी इस काउंट की वैल्यू चेंज होगी, यानी कि जब भी हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ऑन एवरी रेंडरिंग यूज इफेक्ट रन, हर एक रेंडरिंग पे यूज इफेक्ट रन होगा। क्यों रन होगा, यूज इफेक्ट क्यों रन हो रहा है, 337, ओके। ऑन एवरी रेंडरिंग यूज इफेक्ट रन, जैसे ही हमने इंक्रीमेंट 1 किया तो यहाँ पर काउंट की वैल्यू चेंज हो गई। काउंट हमारा क्या था, स्टेट वेरिएबल था। जब भी स्टेट वेरिएबल में चेंज होगा तो दोबारा से हमारा क्या होगा कि यूज इफेक्ट रन करेगा, ठीक है। अगर हम इसको ऐसे करें, अगर हमने दोबारा क्लिक किया तो हमारा काउंट का वैल्यू चेंज हुआ, और दूसरी बार हमारा यूज इफेक्ट रन किया तो ऑन एवरी रेंडरिंग यूज इफेक्ट रन। अगर हमने तीसरी बार यूज इफेक्ट रन किया, चौथी बार भी रन किया, जितनी बार हम अपने स्टेट वेरिएबल में चेंजेस करेंगे उतनी बार हमारा जो है कंपोनेंट री रेंडर होगा, और जब कंपोनेंट री रेंडर होगा तब हमारा यूज इफेक्ट रन करेगा। तो ये होता है फर्स्ट वेरिएशन। अब इसी यूज इफेक्ट में हम अपने डेटा को फेच भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं
कि जब फर्स्ट टाइम रेंडर हो, हमारा कंपोनेंट जब फर्स्ट टाइम इनिशियली रेंडर हो, तभी ये यूज इफेक्ट रन करे। एक बार हम इसको रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पर जब हमारा फर्स्ट टाइम अभी रेंडर हुआ है तभी जो है ये प्रिंट होके आया है। दोबारा क्लिक करेंगे तो कोई भी यूज इफेक्ट दोबारा रन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हमने एम्प्टी एरे जो है पास किया है। तो जब भी हम एम्प्टी एरे पास करते हैं तब क्या होता है कि फर्स्ट टाइम रेंडर होगा तभी यूज इफेक्ट, यानी कि उस जो भी साइड इफेक्ट है उसी टाइम होगा फर्स्ट रेंडर पर। री रेंडर केस में फंक्शन एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, जो कॉल बैक दिया है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, सिर्फ फर्स्ट रेंडर पे होगा। तो ये होता है सेकंड वे, और सेकंड वे भी हमने पढ़ लिया। थर्ड वे जो है इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, एक सेकेंड। तो ये हमारा फर्स्ट वेरिएशन था, इसको कमेंट आउट करेंगे, और हमारा ये सेकंड वे था। अब हम पढ़ेंगे थर्ड वे। अगर थर्ड वे हमारा जो है वो ये है कि इस डिपेंडेंसी एरे में, थर्ड वे में, थर्ड वेरिएशन में हम काउंट पास कर देंगे। अब इस काउंट वेरिएबल में, यानी कि ये काउंट वेरिएबल क्या है, स्टेट वेरिएबल है, जब भी इसमें चेंज होगा तब तब हमारा यूज इफेक्ट रन करेगा। तो यहाँ पर हम एक दूसरा स्टेट वेरिएबल बना लेंगे, इसको रिमूव करते हैं और यहाँ पर हम एक दूसरा वेरिएबल बनाएंगे, लेट इफेक्ट एंड सेट इफेक्ट, और यूज स्टेट का यूज करके हम स्टेट वेरिएबल को बनाते हैं और इसको हम लोग करेंगे लाइक फॉल्स। और यहाँ पर हम लोग दूसरा बटन क्लिक करेंगे जिसमें लिखेंगे इफेक्ट, और यहाँ पर इस बटन को ऑन क्लिक करने पर हम एक फंक्शन कॉल बैक ले लेंगे। इसको जब भी ऑन क्लिक कर रहे हैं तब हमारा जो सेट इफेक्ट है उसकी वैल्यू जो है नेगेशन करके इफेक्ट कर दे, यानी कि जो अगर इफेक्ट में ट्रू है तो फॉल्स हो जाए, फॉल्स है तो ट्रू हो जाए। और यहाँ पर ये इफेक्ट पास कर देंगे, यानी कि अब जब हमारा इंक्रीमेंट क्लिक होगा तो यूज इफेक्ट रन नहीं होगा, लेकिन जब हमारा मतलब जो हमारा काउंट वेरिएबल है, काउंट स्टेट वेरिएबल है, इसमें कोई चेंज होगा तो यूज इफेक्ट रन नहीं होगा, क्योंकि डिपेंडेंसीज एरे में इफेक्ट स्टेट वेरिएबल पास है। इसका मतलब इस इफेक्ट स्टेट वेरिएबल में जब भी कोई चेंज होगा तब हमारा यूज इफेक्ट रन करेगा। तो अब हम चलते हैं, ये हमारा दो बटन है और कंट्रोल शिफ्ट आई, इसको करते हैं कट, रिफ्रेश। सो यूज इफेक्ट जो है ऑन एवरी रेंडरिंग यूज इफेक्ट रन। हाँ, तो फर्स्ट रेंडरिंग पर हमारा जो है यूज इफेक्ट रन करेगा। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये दूसरे, अगर हम इंक्रीमेंट पे क्लिक करते हैं तो इंक्रीमेंट तो हो रहा है, काउंट वेरिएबल में चेंज हो रहा है, बट अगर हम इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तब हमारा दोबारा जो है वो यूज इफेक्ट रन होगा। यानी कि इफेक्ट में अगर कोई चेंज आ रहा है, इफेक्ट स्टेट वेरिएबल में चेंज आ रहा है, तब तभी हमारा यूज इफेक्ट रन कर रहा है। बाकी कोई भी दूसरे स्टेट वेरिएबल में चेंज आए या जो हो उसकी वजह से यूज इफेक्ट रन नहीं करेगा, क्योंकि हमने डिपेंडेंसीज में, डिपेंडेंसी एरे में वो इफेक्ट स्टेट वेरिएबल डाला है, और इसमें जब चेंज होगा तभी हमारा ये यूज इफेक्ट रन करेगा। तो ये हमने पढ़ लिया। यूज इफेक्ट का मेनली यूज होता है डेटा फैचिंग में,
सब्सक्रिप्शन में यूज होता है। कोई भी साइड इफेक्ट हमें अपने कंपोनेंट पे परफॉर्म करानी हो तो हम यूज कर सकते हैं। तो जब भी हम यूज इफेक्ट का यूज करते हैं तो एक हमें क्लीनअप फंक्शन भी यूज करना रहता है यूज इफेक्ट के साथ। अगर हम टाइम आउट, इवेंट लिसनर अगर यूज कर रहे हैं और जिनकी मतलब आगे चल के जरूरत नहीं है, लाइक बहुत कम यूज हो रहे हैं वो, तो उसके लिए हमें क्लीनअप फंक्शन भी यूज करना पड़ता है। बेसिकली यूज इफेक्ट को यूज करने का ये 3 तरीका है, 3 वेरिएशन है। पहला है कि आप बस कॉल बैक दीजिए तो हर एक रेंडरिंग पर आपका यूज इफेक्ट रन करेगा। दूसरा तरीका है कि आप चाहते हैं कि फर्स्ट टाइम जो रेंडर हो कंपोनेंट तब यूज इफेक्ट रन हो, तब आप एम्प्टी एरे दे सकते हैं डिपेंडेंसीज एरे में। तीसरा तरीका है कि आप चाहते हैं कि कोई एक स्पेसिफिक स्टेट वेरिएबल है, जब वो चेंज हो, उसमें वैल्यू चेंज हो, तब आपका यूज इफेक्ट रन करे। तो ये तीसरा तरीका है। ओके।